Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor by Newton School, and in this video we are going to learn a new problem from the playlist OA problem set, that is remove nth node from the end of linked list. Okay, so linked list का question है, and since linked list is an important topic regarding to your online assessment and companies interviews, that's why we are seeing this video in this playlist. Okay, so now question is remove nth node from the end of the linked list. Okay, so इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं एंड इसका कोड वी विल सी ऑल दिस इन दिस वीडियो ओनली, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically, as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program they have for you is pay after placement program. Okay, so in pay after placement program what they simply do is they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in these different companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, and Academy, Public Sapient, PayU, Nutanix. So they have tie-up or with all these companies. So they will firstly make you a full stack developer and then they will get you placed in these companies. And minimum CTC they provide you is for 5 lakhs. So most amazing thing about their pay after placement program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum of 5 lakh CTC. Okay, so you can see here also that application for full stack development course is open right now. You can just go for this October batch right now. Just come to their website and apply now. Second thing they have for you is Launchpad initiative, under which they have different courses especially designed for your learning purposes for free. Okay, and you can also solve quizzes here. You can also perform in coding contests which are getting held on regular basis in Newton School. Okay, so you can just participate and opt any course, learn from it for free. Just come, log in or sign up and start learning, and you will also get certificate after completion of any course. Okay, so just come to newtonschool.co and check their both programs, that is pay after placement program and Launchpad initiative. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that's Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel, since we are updating regularly these playlists which we have in this channel, that is for regarding companies placements, regarding online assessments of companies, regarding interviews, regarding data structure and algorithms, regarding programming languages, regarding dynamic programming. We have everything for you and absolutely for free. Just come and subscribe and like the videos. Now let's just see what is our today's video, that is remove nth node from the end of the linked list. So let's just see problem statement first. Problem statement is simple, that you have to remove nth node from the end of the linked list. Okay, suppose this is your linked list. Suppose this is your linked list and I told you to remove second node from the end of the linked list. Okay, or you can say that value of n here is equals to 2. So you have to remove nth node from the end of the linked list. You will say that you have to remove this node. What you will simply do is, you already know how you can delete a node from some given position. Okay, so now you know that this is the node which you have to delete. Okay, now I have already told you in previous videos like how you can delete some node from the linked list. Delete a node from the linked list. Okay, कैसे करते हैं ये? For deleting a node from the linked list, one more thing we must be having is its previous node. Okay, कोई भी नोड डिलीट करने के लिए हमें उसके प्रीवियस नोड का रेफरेंस पता होना चाहिए. ओनली देन वी कैन डिलीट दैट नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट. नाउ उसका प्रीवियस नोड कैसे मिलेगा? यू कैन से दैट इट्स प्रीवियस नोड विल बी सिंपली n+1th नोड. ओके, n+1th नोड फ्रॉम द एंड. ओके, और यू कैन और इन केस ये जो तुम्हारा नोड है जो तुम डिलीट करने वाले हो वो nth नोड फ्रॉम द एंड है एंड n इज द साइज ऑफ लिंक लिस्ट. ओके, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 होती तो यू विल से दैट इसका प्रीवियस नोड मुझे मिलेगा नहीं, एंड इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू डिलीट हेड फ्रॉम द लिंक लिस्ट. सो उस केस में हमें हेड को डिलीट करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है? हेड को सिंपली यहाँ पे पॉइंट करा देना होता है और हमारा न्यू हेड क्या हो जाएगा? ये. ठीक है, तो वो वाला केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. वी हैव टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट राइट नाउ in this example. Okay, and for deleting this node we must be having this node pointer. So to delete this node what we will simply do is, जो इसके previous node का next है, we will point this pointer to its next of next. सिंपल सी चीज है. टू डिलीट दिस
to delete this node, what we will simply do is we will point its previous next to previous of next and next. ओके, तो सिंपली ये पॉइंटर कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे. एंड नाउ विल सिंपली टेल now we will simply write that delete this current node. You can say this node is current node. Okay, so in this way you can delete nth node from the end of the linked list. Only thing you need to know is that what is the nth node from the linked list, that is current node, and what is the n plus 1th node from the end of the linked list. Okay, fine. तो अब मेन तुम्हारा टास्क कहाँ पे आया, डिलीट करना. तो तुम्हारे इस क्वेश्चन का मेन टास्क है ही नहीं. ओके, मेन तुम्हें चाहिए कि तुम कैसे बैक साइड ऑफ लिंक लिस्ट से nth नोड एंड n प्लस 1th नोड फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ठीक है, सिंस तुम आगे से तो इटरेट कर सकते हो लिंक लिस्ट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू इटरेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, तुम्हें nth नोड फ्रॉम द एंड चाहिए and in single iteration. What if I add something to the problem statement that you have to do it in single iteration. Okay, otherwise तुम बोलोगे कि मैं simply क्या करूंगा, I will find out the size of the linked list, and फिर मैं size minus nth node पे वर्क करूंगा. and size minus nth node क्या हो जाएगा, simply size minus n plus 1th node पे, sorry you can say. okay, तो मुझे ये वाले नोट्स मिल जाएंगे, मैं कुछ साइज माइनस nth नोड पे वर्क करना शुरू कर दूंगा. बट इन दैट केस तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइज, ऑब्वियसली, है ना. एंड एक इटरेशन में तुम साइज निकालोगे, फिर तुम नेक्स्ट इटरेशन से वर्क करोगे डिलीशन पे. तो उस केस को हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है. मैं एक नई जनरल टेक्निक बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और हम उस टेक्निक पे काम करने वाले हैं. So generally, whenever you have some question like you have to access some node from the back of the list, ठीक है, तुम्हें nth node from the back access करना है, kth node from the back, या middle node तुम्हें इस linked list का access करना है, ठीक है. तो तुम क्या कर सकते हो, तुम middle node access करने के लिए या nth node access करने के लिए simply क्या करोगे, एक 2 pointer टेक्निक काइंड ऑफ यूज करो, ठीक है, 2 pointer प्लस डिस्टेंस टेक्निक. अब एग्जैक्ट ये टेक्निक है क्या, ये देखो. अगर मैं क्या बोलूं कि मेरे पास 2 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, और मैं इन 2 पॉइंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो करेंटली n बना दूं, ठीक है, और करेंटली मैंने इन 2 पॉइंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी बना दी, n. अब मैं सिंपली क्या करूंगा, एक पॉइंटर को यहाँ पे रखूं, i यू कैन से, एंड मेरी n की वैल्यू क्या थी, 2. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, n-1 बना दो, और यू कैन से फर्स्ट नोड मेरा ये रहेगा और इससे जो nth नोड रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, मेरा सेकंड पॉइंटर. सो मैंने सिंपली क्या किया, एक डिस्टेंस मेंटेन की अपने दोनों पॉइंटर्स के बीच में, दैट इज यू कैन से n-1 डिस्टेंस. और फर्स्ट पॉइंटर से सेकंड पॉइंटर कितना है, nth नोड है, ठीक है. तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट से 2 पॉइंटर्स अरेंज किए एंड आई मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन देम एज n, यू कैन से, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल सिंपली डू इज, मैं इन दोनों पॉइंटर्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इटरेट कराऊंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सिंपल सी चीज है, जस्ट इटरेट बोथ दीज पॉइंटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब मैं जब इनको एक से शिफ्ट करूंगा तो दिस विल बी माई i एंड दिस विल बी माई j. आई विल अगेन शिफ्ट देम बाय 1, सो दिस विल बी माई i एंड दिस विल बी माई j. नाउ यू कैन से दैट जब तुम्हारा j जो है वो लास्ट पॉइंटर पहुंच गया है, ठीक है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंटर होगा इस लास्ट पॉइंटर के लिए, नाउ तुम्हारा j यहाँ पे है एंड जो i है वो इससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, दैट विल बी सिंपली जो i था उससे j कितना था, nth नोड था, तो j से i कौन सा नोड होगा, nth नोड होगा. सो यू कैन सिंपली से कि नाउ इस लास्ट पॉइंटर जब j बन गया, उस केस में जो तुम्हारा ith नोड होगा, दैट इज फर्स्ट पॉइंटर, विल बी इन द पोजिशन of the node which you have to delete, that is nth node from the end of the linked list. So ये जो 2 pointers plus distance maintaining वाली thing है, you can use that thing in this way. Okay, like you can use 2 pointers and then you can maintain distance between them, and then simultaneously you can move both these pointers together at the same time, and whenever you will get to the end
get an end for the second pointer. Okay, you can have that distance using the first pointer from the back of the list. Okay, I hope यहाँ तक का तुम्हें clearly समझ में आ गया होगा what I am trying to say, and I have explained you everything with this example. ठीक है, now अगर मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता और मैं बोलता कि मुझे इस लिंक लिस्ट के मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना, तो तुम सिंगल इटरेशन में मिडिल एलिमेंट कैसे डिलीट कर सकते थे? व्हाट यू विल सिंपली डू इज, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता, बट उस क्वेश्चन को भी तुम ऐसे ही कर सकते थे. तुम साइज बाई 2 निकालते, ठीक है, साइज बाई 2 दोनों पॉइंटर्स के बीच में मेंटेन करते, एंड जब तुम्हारा लास्ट पॉइंटर यहाँ पे आता तो तुम्हारा जो फर्स्ट पॉइंटर है वो मिडिल एलिमेंट में होता. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने का एक और ये तरीका भी हो सकता था, बट मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड करने का एक अच्छा तरीका है, एंड वी विल सी दैट थिंग इन सम नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन nth नोड फ्रॉम द बैक ऑफ द लिंक लिस्ट. नाउ अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे 2 पॉइंटर्स चाहिए और उन दोनों के बीच में n डिस्टेंस या n-1 डिस्टेंस मेंटेन करनी है. सो दैट थिंग आई विल डू सिंपली लाइक, मैं एक पॉइंटर लूंगा, उसको हेड पे पहले लाऊंगा, हेड से उसको यहाँ तक लाऊंगा, जब वो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, और यू कैन से मैं n टाइम्स उसको n-1 टाइम्स इटरेट करूंगा, और जब वो इस नोड को पॉइंट करने लगेगा मैं एक नया पॉइंटर लूंगा और उसको अगेन हेड से चला दूंगा. ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉइंटर्स हैं, मुझे सिंपली क्या करना है, इसको और इसको दोनों को इटरेशन शुरू करना है टिल दिस पॉइंटर इज नॉट बिकमिंग नल, एंड एट दैट टाइम आई विल बी हैविंग माय nth नोड, और उसको मैं वहां से डिलीट कर दूंगा सिंपली. ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम शोइंग यू द कोड एंड यू विल गेट इट सिंपली ईजिली. सो ये मेरी लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक नोड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक डेटा होगा, उसकी वैल्यू, देन एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड ऑफ दैट करेंट नोड, एंड ये कुछ कंस्ट्रक्चर्स तुम इस तरह अगर लिखोगे तो एक नोड इनिशियलाइज होगा विद वैल्यू 0 एंड सिंपली नल पॉइंटर, एंड इफ यू राइट इट लाइक दिस, एक नोड इनिशियलाइज होगा विद वैल्यू x एंड सिंपली नेक्स्ट पॉइंटर एज द नेक्स्ट. सो ये तुम्हारे कंस्ट्रक्चर्स और ये स्ट्रक्चर ऑफ द नोड. Now this is your code. You have the reference of head node and you have value of n. Now simply तुमने क्या किया, एक नया head 1 बनाया, and head 1 के next को तुमने किसको point करा दिया. If I will show you the preview of this thing, so तुमने एक नया node बनाया head 1 जिसमें तुमने value दी 0 and जिसका तुमने next point करा दिया head को. ठीक है, now what you will simply do is, इसके लिए तुमने simply क्या किया, एक head बना लिया और ये तुम्हारे current head को point कर रहा है. ठीक है, अब अगर इन दोनों लाइंस को अभी साइड पे रखो, तुमने ये लूप चलाया और कितने टाइम्स चलाया, n-1 टाइम्स, ओके, और n टाइम्स, सॉरी, और तुमने इसको n टाइम्स आगे चला दिया. ठीक है, तुमने एक फास्ट नोड और लिया जो कि करेंटली हेड 1 है, यहाँ पे है यू कैन से. ठीक है, और इस नोड को तुमने n टाइम्स चला दिया, तो अब ये कहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली सेकेंड पॉइंटर के डिस्टेंस, सेकेंड पॉइंटर के प्लेस पे. ठीक है, अब तुम्हें एक नया नोड चाहिए जो कि तुम्हारे इनिशियली स्टार्टिंग में हो. ठीक है, तो तुमने एग्जैक्टली किया क्या, अब मैं यहां से तुम्हें प्रीव्यू तुम्हें मिल गया होगा ऑलरेडी, बट मैं एग्जैक्टली एक बार और दे देता हूं. अगर ये तुम्हारी लिंक लिस्ट थी, ठीक है, अगर ये तुम्हारी लिंक लिस्ट थी तो तुमने एक अपना फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे लिया, और अगर nth नोड तुम्हारा यहाँ पे था तो तुमने ये 2 पॉइंटर्स मेंटेन कर लिए. अब तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, इन दोनों पॉइंटर्स को कब तक चलाना है, दैट इज ये दोनों पॉइंटर्स थे, फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर, और यू कैन से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर. अब तुम्हें कब तक चलाना है, जब तक दिस थिंग इज नॉट बिकमिंग नल, तो जब तक फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यू विल सिंपली मेक फास्ट एज फास्ट नेक्स्ट एंड स्लो एज स्लो नेक्स्ट. ठीक है, फाइन, तुम अब नल पोजीशन पे पहुंच गए. ओके, फाइन, अब तुम्हें नोड टू डिलीट क्या मिला, स्लो का नेक्स्ट. तो एग्जैक्टली यहां पे मैंने फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट नल क्यों लिखा है, मैंने फास्ट नल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मैं इन दोनों नोड्स को नल तक नहीं लेके जाऊंगा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंटर i एंड j यू कैन से, बिकॉज अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है आई नीड इट्स प्रीवियस नोड. ओके, तो मैं एक कम बार चलाऊंगा, और एक कम बार चलाने के लिए मैंने यहाँ पे फास्ट नेक्स्ट लिख रखा है. ठीक है, तो अब i जो है मेरा, ये प्रीवियस नोड है. ठीक है, ये नोड मुझे डिलीट करना है, और ये नोड जो है मेरा, ये लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट है. ठीक है, अब मुझे इस लो में ये जो पॉइंटर है, ये जो नोड है मेरा, ये इस लो है. ठीक है,
नाउ नोट टू डिलीट मेरा क्या हो गया, सिंपली स्लो नेक्स्ट, मुझे ये वाला नोट डिलीट करना है, इजी इजी। आई विल सिंपली मेक स्लो नेक्स्ट, ये नोट मेरा स्लो था और यू कैन से फर्स्ट पॉइंटर, आई विल सिंपली मेक स्लो नेक्स्ट एज इक्वल्स टू स्लो नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था, अगर मुझे ये नोट डिलीट करना है आई विल मेक दिस नेक्स्ट टू इट्स नेक्स्ट and I will simply delete, node to delete, whichever node I have to delete, and I will simply return head 1 next. Why head 1 next? I have already told you, क्योंकि जो head 1 है वो मेरे head को point कर रहा है right now, ये मेरा head 1 है, okay, and ये मेरा current head है, जो मेरी current linked list का head है, so I will return head 1 next, that is this node as the answer after deleting nth node from the back of the linked list. सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल explain you again, and the code link you will get in description of this video. Okay, again if you haven't visited newtonschool.co yet, just go and visit, check their pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed, and you can apply for full stack development course right now because October batch is open right now. Second thing, if you haven't visited Launchpad initiative or check Launchpad initiative, just go opt any course, start learning and get the certificate after completion. And at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel and start learning for free. Thank you guys for watching this video.